क्लास फोर्थ। अब आपको इसमें से ग्रामर का पोर्शन करना है पेज नंबर 15। इस पेज पे आपको ये बताया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो टेंस प्रेजेंट में किया जाता हो, मीन्स दिस एक्शन रेफर्स टू इन एवरीडे लाइफ और ट्रू नाउ। These actions does not refer only in present but also immediate past and future, means when the thing or a person we are talking in the singular, we will add s or es to the verb. On the other hand, when the thing or a person we in the plural, we do not add es or es to the verb. Now you have to fill this exercise in the textbook on page 16. First question is, complete these sentences using the correct words from the given brackets. First one is, monkeys eat or eats bananas. First sentence is, monkeys are there, so we will write eat. We will write eat. Monkeys eat bananas. Almost every day the elephants has or have a bath. With the elephant we will write underline have. Have a bath in the river. The boys बहुत सारे लड़के हैं boys, so are welcome, are scared. My father एक ही जना है is a doctor. We wear or wears woolen clothes in winter. We के साथ क्या आएगा wear. ये सब अंडरलाइन करने हैं. Then question B, fill in the blanks with the correct form of verbs given in the brackets. Single present tense, the sun dash brightly. Shine का क्या हो जाएगा shines. The baby sleep का क्या हो जाएगा sleeps. The children go का से go to the park in the evening. The class start क्या हो जाएगा starts at 10 a.m. The boys dash in the playground. बहुत सारे boys है तो same run will come. Then match correctly and make sentences. She has a beautiful doll. They have many kites. I have a mango tree in their garden. They have mango tree in their garden. I have many kites. I have big bag. We have many kites. You have a huge dog. Then next, read and writing skill. Write 3 words that come to your mind when you think of a boat, water, or sail. ये जो बोट है पानी में चलती है और भी सेल करती है, पानी के ऊपर तैरते हैं. Then apple is a red, tasty and grows on a tree. A tree, huge green shade, मतलब शेड भी देता है. Old man, stick, डंडी लेके चलता है. Wrinkles, झुर्रियाँ पड़ना. Weak, weak हो जाता है. जो ओल्ड मैन होता है वो वीक होते हैं. Then fill in the blanks. Laugh is to cry, as big is to small. Now open page 17. Laugh is to cry, big is to small. जैसे अपोजिट होता है बिग का होता है स्मॉल, वैसे लाफ का क्राई.
रीडिंग इज़ टू बुक एज डैश इज़ टू पेंसिल। रीडिंग करते हैं बुक से तो पेंसिल से क्या करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग। सीइंग इज़ टू आइज़, हियरिंग इज़ टू ईयर्स। देखते आइज़ से हैं तो सुनेंगे किससे, ईयर से। बोट बोट इज़ टू वाटर, एरोप्लेन इज़ टू एयर। बोट किसके लिए होता है, वाटर के लिए, और एरोप्लेन एयर के लिए। एरोप्लेन एयर में उड़ता है, बोट पानी में। उसी तरह से अब ये जो लेसन मैंने समझाया था ट्री के बारे में, उसी के ये कन्वर्सेशन है, दोनों ट्री बातें करते हैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन एन ओल्ड ट्री स्टम्प एंड इट्स फ्रेंड। यू मे यूज़ द वर्ड्स, मतलब एक ओल्ड ट्री है स्टम्प और फ्रेंड स्टम्प है, वो दोनों बातें करते हैं। हेलो माय फ्रेंड, फ्रेंड स्टम्प हेलो, ओल्ड ट्री स्टम्प आई एम सो हैप्पी टुडे एन ओल्ड फ्रेंड केम टू विजिट मी। एक दूसरे से बातें करके बताते हैं कि मेरे पास वही छोटा बच्चा आया था मिलने। फ्रेंड स्टम्प ने पूछा, हु इज़ योर फ्रेंड, डू आई नो हिम टू। हु, उसने पूछा कि मैं तेरे दोस्त को जानता हूँ। ओल्ड ट्री स्टम्प ने क्या बोला, नो यू डोंट नो हिम, एज अ चाइल्ड द बॉय यूज टू प्ले विथ मी। उसने बोला कि वो जो छोटा बच्चा था तब मैं से खेलता था। चाइल्ड प्लेड यंग बॉय। फ्रेंड स्टम्प, वाई डिड यू गिव अवे योर ट्रंक एंड ब्रांचेस। उसने फ्रेंड स्टम्प ने बोला, तो उस बच्चे को सब चीज़ें क्यों देता रहता है। ओल्ड ट्री स्टम्प ने क्या बोला, माई फ्रेंड needed my branches and trunk to build a house and a boat. I helped him by giving them. Friend stump, did he return to meet you? उसने फिर से तुझे कुछ वापस दिया। Old tree stump, yes, now he is an old man and needs a quiet place to sit and rest. ये पेज 17 और पेज 16 टेक्स्ट बुक में आपको कंप्लीट करना है। 1. You have to make part English 2 on the back side of the notebook. English 2 grammar classwork. Chapter 1 simple present tense. We have to write definition. The tense of a verb tells us when the action was or will be carried out. The simple present tense refers to actions that happen every day or are true now. मतलब जो रोज़ किए जाते हों और जो सही हो, जो चीज़ें रोज़ करते हों और सच्ची बातें हों, उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। When the thing or a person we are talking in the singular, we add s or es to the verb. On the other hand, when the thing or person in the plural, we do not add s or es to the verb. Now we have to write exercise. Fill in the blanks with the correct form of verbs given in bracket. The animals eats और eat s लगा है तो सिर्फ खाली eat लिखेंगे। नाउ सेकंड, द प्रिंसेस, एक ही जनी है, प्रिंसेस है, लिव्स और लिव, वी विल राइट लिव्स द इन द पैलेस। द क्लाउन्स डैश मेक और मेक्स पीपल लाफिंग। क्लाउन्स है, बहुत सारे जो है क्लाउन्स, तो मेक आएगा, क्या आएगा, मेक। देन नेक्स्ट, द टीचर, एक ही टीचर है तो टीचेस और टीच वेल। शी एक ही जनी के साथ डांसेस आएगा, क्योंकि शी एक ही जनी है, डांस नहीं, डांसेस ग्रेसफुली। नंबर, द सन डैश शाइन और शाइन्स, क्या आएगा, एक ही सन है तो शाइन्स, इधर हम लिखेंगे शाइन्स। देन द बेबी, एक ही जना है, बेबी है, इन हिज क्रेडल, स्लीप्स आएगा, क्या आएगा, स्लीप्स। नाउ नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन
डैश टू द पार्क इन द इवनिंग। गो का सेम गो रहेगा, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं इसीलिए। वैसे अगर एक चाइल्ड होता तो गोज़ आता। नाउ नेक्स्ट, द क्लास डैश एट 10 AM। द क्लास, क्लास क्या कर, एक क्लास पूरा स्टार्ट्स, क्या आएगा, स्टार्ट्स एट 10 AM। द बॉयज़, बॉयज़ है, बहुत सारे जने हैं तो क्या आएगा, रन। वी मतलब बहुत सारे जने, वियर और वियर्स। वियर आएगा, क्या आएगा, वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। माय फादर एक ही जना है तो क्या आएगा, आर तो तब होता है जब बहुत सारे जने हो, इज़ हो तो एक सिंगल। इज़ अ डॉक्टर। मंकीज़ बहुत सारे जने हैं, डैश ईट और ईट्स बनानास, तो क्या आएगा मंकीज़ के साथ, ईट बनानास। ऑलमोस्ट एवरी डे द एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं तो क्या आएगा, हैव अ बाथ इन द रिवर। द बॉयज़, बॉयज़ है बहुत सारे, रन या रन्स इन द प्ले ग्राउंड, क्या आएगा, रन, क्योंकि एस लग चुका है तो यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। द सन शाइन्स ब्राइटली। द क्लास डैश स्टार्ट्स एट 10 AM। द प्रिंसेस डैश का क्या आएगा, केयर्स, एक ही जनी है प्रिंसेस। ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लास वर्क नोटबुक में लिखनी है और ये डेफिनेशन भी क्लास वर्क में ही लिखनी है। इंग्लिश 1 के ही नोटबुक में इंग्लिश 2 का भी पोर्शन बनाओगे पीछे के साइड, जो इंग्लिश 2 को नाम दोगे ग्रामर, इंग्लिश 2 ग्रामर क्लास वर्क, उसी में आपको ये पूरी दोनों पेज लिख के रखना है।